أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبي سيدنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد عليهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وما محمد إلا رسول إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قرآن مجید میں ہے کہ یتیموں پر ظلم و ستم نہ کرو۔ اسلام میں یتیموں پر رحم کرنے کا خاص طور سے حکم ہے۔ حضرت رسول خدا نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو یتیموں پر رحم نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب یتیم کو کوئی ستاتا ہے اور وہ روتا ہے تو عرش الہی ہل جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ کسی یتیم کے سامنے اپنے فرزند کے چہرے پر بوسہ نہ دو کہ اس کو اپنا باپ یاد آئے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے جب کوئی کسی یتیم پر ظلم کرتا ہے تو فرشتگان عرش اس پر لعنت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یتیم کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ ماں باپ ہی اولاد کی سب سے زیادہ ناز برداری کرنے والے ہوتے ہیں۔ جب بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے ناز سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال اس درخت کی سی ہو جاتی ہے جس کی جڑ اکھڑ گئی ہو۔ ایک بار حضرت رسول خدا مدینہ کے کسی راستے سے گزر رہے تھے۔ ناگاہ ایک بچے کے رونے کی آواز کان میں آئی۔ آپ فوراً ٹھہر گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ ایک بیوہ عورت اپنے بچے کو اس ضد پر مار رہی ہے کہ وہ نئے کپڑے پہننے کے لیے مانگ رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا تم اس بچے کو نہ مارو، اس کے رونے سے میرا دل ہل گیا، اس کے ضد میں پوری کروں گا۔ چنانچہ آپ نے اسی وقت کپڑا منگوایا اور اس بچے کا لباس تیار کر کے بھیج دیا۔ پھر حضرت کا یہ معمول رہا کہ جب ادھر سے گزرتے تھے تو اس بچے کو بلا کر پیار کرتے اور دریافت فرماتے کہ اس کی کوئی خواہش تو نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بڑے یتیم پرور تھے۔ حضرت علی علیہ السلام بڑے یتیم پرور تھے۔ آپ جب خلیفہ ہوئے اور کوفے کو آپ نے اپنا پائے تخت بنایا تو امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمام شہر کی ان بیواؤں کی ایک فہرست بناؤ جو محتاج امداد ہیں، اور امام حسین کو حکم دیا کہ تم ان یتیموں کی ایک فہرست بناؤ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ جب یہ فہرستیں بن گئیں تو حضرت اپنے کندھوں پر روٹیوں اور خرموں کے تھیلے رکھ کر رات کے وقت تمام شہر میں خود جاتے تھے اور جہاں کوئی بیوہ یتیم ہوتا اس کو کھانا پہنچاتے تھے، اور باوجود رات کی تاریکی کے پس در سے منہ پر نقاب ڈال کر اس طرح دیتے تھے کہ کوئی آپ کو پہچانے نہیں اور اسے لیتے وقت شرم نہ آئے۔ کئی برس تک آپ کا یہی معمول رہا۔ کسی یتیم یا بیوہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ رات کو جو شخص کھانا دینے آیا کرتا ہے وہ کون ہے۔ اسی کوفے میں جہاں حضرت علیہ السلام نے یتیم پروری کی، یتیمان مسلم پر وہ ظلم ہوئے کہ ان کے بیان کرنے سے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ آج 3 محرم ہے، پسران مسلم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ مصائب پر سوچنے کا مقام ہے کہ آپ دل سے سوچیں کہ ان پسران مسلم کے بچوں پر کیا ظلم ہوا۔ بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت مسلم کی شہادت کے بعد ان بچوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اہل کوفہ کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ ایک ایک سے فریاد کرتے تھے کہ ہم کو چند روز اپنے گھر میں پناہ دو، مگر کوئی اس پر راضی نہ ہوتا تھا۔ ابن زیاد نے منادی کو کر دی کہ جو کوئی پسران مسلم کو اپنے گھر میں چھپائے گا اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ بے کس وہ بیچارے بچے مارے مارے پھرتے تھے،
मौत की भयानक तस्वीर रहकर उनकी आंखों में फिर जाती थी। इब्ने ज़ियाद के सख्त अश्काल सुनकर लोग कांप रहे थे, मगर बच्चों की परेशानी के तस्वुर से मुहिब्बान अहले बैत के दिल हिल रहे थे। औरतें अपने शौहरों से कहती थी, ना मालूम इन गरीब बच्चों पर क्या गुजर रही होगी और बेचारे इस परदेश में कहाँ कहाँ मारे मारे फिरते होंगे। हम खुद इन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते, मगर हाकिम बग़दाद के जासूस हर तरफ लगे हुए हैं। खुदा जाने वो हाकिम से जाकर कहाँ छिपे होंगे, इनके फूल से चेहरे कैसे कुमलाए होंगे। वो भोली भोली सूरतें, वो सरों पर छोटे छोटे अमामे, दोष पर बल गाए हुए गेसू जब याद आते हैं तो बेआब की तरह दिल सीने में तड़प जाता है। हाय, इस चर्क सितमगार ने बच्चों को क्या रोज बद दिखाया। ये 7-7, 8-8 बरस की तो उम्रें और परदेश की ये मसाइल कुछ बस नहीं। नाकों पर पहरे बैठे हुए थे और उनको ताकीद थी कि खबरदार कोई शहर से बाहर न जाने पाए। कल काजी के घर से 2 बच्चे निकल भागे हैं। हाकिम को इन बच्चों को पकड़ लाने का बड़ा इनाम पाएगा। यहाँ बच्चों का यह आलम था कि लरसते कांपते एक तरफ से दूसरी तरफ जाते थे, हर तरफ घबराए फिर रहे थे कि एक नाके के करीब जा निकले। एक सिपाही ने लड़का कर कहा, बस आगे कदम न रखना, कहाँ भागे जा रहे हो, तुम्ही को तो हमारी तलाश है। ये सुनकर दोनों बेदर्द की राह तर 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 कांपने लगे। भाई से भाई ने कहा, अब क्या करें, ये दुश्मन नहीं है बल्कि हमारी मौत है, हमारा जिंदा रहना मुहाल है। ये जालिम हमें बर्छियों से मारना शुरू कर देंगे। हम लाख मन्ना तो जारी करेंगे मगर ये मानने वाले ही नहीं। अभी दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि वो जफाकार उनके करीब आ पहुंचे और वो मासूम बच्चों को तमाचे से मारना और हाथों को बांधना शुरू किया और फिर इनको कसा कसा ले चले। जाते थे जो रोते थे वो गेसुओं वाले, बाजार में बेताब थे सब देखने वाले। जल्लादों में मासूम किसी जान के लाले, तकते थे हर एक को कि हमें कोई चुरा ले। हाँ, हाल अपना इशारे से जताते थे किसी को, अरे रस्सी से बंधे हाथ दिखाते थे किसी को। हर गलत वो जालिम इस तरह अलगरज वो जालिम इसी तरह बच्चों को खींचते हुए दरबार में पहुंचे। मलऊन एक मरसे तक पर बैठा हुआ था, उसके आसपास कुर्सियों का बेहद बाजार लगा हुआ था। नाहगार लरसते कांपते बच्चों को पेश किया। आखिरकार इब्ने ज़ियाद बदनिहाद ने उनको कैद करने का हुक्म दिया और ताकीद की कि हरगिज इनकी बातों में आकर इन पर रहम न करना, इनकी मुआफ़त में कोई कोताही न करना। ऐसा न हो कि निकल भागें। इनको लजीज खाना और ठंडा पानी न देना, ये हमारे दुश्मन के बच्चे हैं, इनके आराम और साइस का सामान न करना। उसने कहा, ऐसा ही होगा। गरज उस जालिम ने दोनों बच्चों को एक हुजरे में ले जाकर बंद कर दिया। गर्मियों तारीकी से बच्चों का दम घुटता था तो बेचैन होकर फरियाद करते थे, लिल्लाह जरा देर के लिए हमें बाहर निकाल दे, हमारी जानों पर आ बनी है, हम भागने वाले नहीं। अगर हमारे कहने का यकीन ना हो तो हमारे पैर में बेड़ी और गले में ताग डाल दे। लेकिन इन बेकसों की फरियाद सुनने वाला कौन था। दोनों इस तरह बेचैनी से तड़पते थे जैसे टायर बेबस पिंजरे में तड़पता है। तारीख वो हुजरा था मिसाले शबे ज़ुल्मात, अरे मालूम न होता था कि कब दिन हुआ कब रात। मरकज के अंधेरे को कभी इस घर ने किया मात। शहर में वो रोते थे आंखों में धरे हाथ, थी पेश नजर वस्ल में तन्हाई की सूरत,
अरे भाई को ना आती थी नजर भाई की सूरत, हर सुबह को मामूल था मुंह अश्कों से धोना, उठ उठ के नमाजें कभी पढ़ना कभी रोना, देखा न कभी ख्वाब में बेचैन से सोना, ये रात को खाक ओढ़ना खाक बिछोना, अरे जुज शुक्र खुदा मुंह से न कुछ कहते थे दोनों, अरे सर खाक पे न्योड़ाए हुए रोते थे दोनों, सर न्योड़ाए हुए खाक पे रोते थे दोनों। बड़ा भाई छोटे भाई को समझाता था कि बिरादर सब्र करो, शिकायत का कोई मौका नहीं, हमारे सर पर न माँ है न बाप, जो कुछ मिल रहा है गनीमत है, हमारा मुंह तो इस खाने के काबिल भी नहीं, खुदा मालिको मुख्तार है, इस मुश्किल को वही आसान करेगा, खुदा या किसी का जमाना एक सा नहीं रहता, अगर जीते रहे तो एक दिन वक्त भी न रहेगा। लश्कर शुक्र है कि जिंदान में एक वक्त का खाना तो मिल जाता है, वरना इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको कई वक्त आब और दाना मैसर नहीं आता। हमारे दादा ने हमेशा नान जवे की रोटी खाई है, हम भी खा रहे हैं, इसका क्या गम है। वो दर्द भरी दास्तान सुनकर उसके आंसू निकल पड़े। बच्चों ने कहा, अय शख्स, तू मोहम्मद मुस्तफ़ा को जानता है या नहीं? कहा, भला कौन मुसलमान ऐसा हो सकता है जो इनको न जाने? उन्होंने कहा, अरे भाई, तू अली मुर्तज़ा से भी वाकिफ है? उसने कहा, हाँ। सुभान अल्लाह, क्यों ना वाकिफ होता, वो तो मेरे इमाम है। ये सुनते ही बच्चों की तन जान में जान आ गई। कहने लगे, अरे शख्स, हम उसी खानदान के बच्चे हैं, मुस्लिम इब्न अकील के फर्जंद। ये सुनते ही वो खुश अतवार घबरा गया। बच्चों ने कहा, अल्लाह ताला तुझे इस नेकी की सजा दे। इंशाअल्लाह हमारे जद हजरत अली मुर्तज़ा, हमारी दादी हजरत फातिमा ज़हरा हश्र में पेशे खुदा तेरी शिफात ख्वाह होंगी। अय शख्स, हम राह से वाकिफ नहीं, जाए तो कहाँ जाए? अगर तुझे मालूम हो तो ये बता दे कि फजलुर रसूल सकलैन हज़रत इमाम हुसैन आजकल कहाँ है, ताकि हम उनकी खिदमत में चले जाएं। जो रास्ता सबसे ज्यादा नजदीक हो वो हमको बता दे। ये सुनते ही तड़प गया, कहने लगा, अरे बच्चों, ये सुनते ही इन बच्चों के ऊपर रक्त तारी हो गई, मुर्ग समल की तरह तड़पने लगे। नागा एक पेरजन जो अपने दामाद के आने का इंतजार कर रही थी, दरवाजे पर खड़ी नजर आई। बच्चों ने बाजजी उससे कहा, अरे मादरे मेहरबान, खुदा और रसूल का वास्ता, थोड़ी देर के लिए हमें अपने घर में पनाह दे, थोड़ी देर अपने घर में पनाह दे। जाते ही उस जालिम ने दोनों बच्चों के बाजू जोर से पकड़ लिए और पूछा, तुम कौन हो? बच्चों ने कहा, अरे शख्स, अगर अमान देने का वादा करे तो हम तुझसे अपना हाल बयान करें। उसने कहा, मैंने अमान दी, सच सच बता, अपना हाल बता। उन्होंने कहा, रस्ते काबे का शख्स, हम मुस्लिम इब्न अकील के फर्जंद हैं और पनाह लेने के लिए तेरे घर आए। सुनते ही जफाकार बाहर लाया जाती जालिम दोनों बच्चों के बाजू। ये सुनते ही जफाकार ने बस आँख को मोड़ा, यूं बाजुओं को जोर से पकड़ा कि न छोड़ा, रस्सी में उन्हें बांध दिया, अहद को तोड़ा। बच्चों ने कई बार बंधे हाथों को जोड़ा, जब खींचता था गिर के, अरे मचलते थे वो बच्चे, पर हुजरे से बाहर न निकलते थे वो बच्चे। दिखलाता था खंजर उन्हें जब करते थे फरियाद, बच्चों पे ये दुख है, यतीमों पे ये बेदार। दरवाजे तनक खींचता लाया सितमे जा, कमजोर थे और वो जबरदस्त था जल्लाद। कुर्ते थे फटे टोपियां, अरे भी गिर गई सर से,
मुजरिम की तरह दोनों को बांध दिया दर से। अलगरज जब सुबह नमूदार हुई, बस थोड़ी देर बस खत्म मजलिस। जब सुबह नमूदार हुई तो वो जालिम दोनों को पकड़कर दरिया की तरफ ले जाने लगा। ज़ने मोमिना रोने पीटने लगी और ये मन्नत कहने लगी, दोबारा बच्चों से लिपटती थी, वो बार बार बच्चों से लिपटती थी और वो जालिम उसे तलवार की फूलों से हटाता था। आखिर जब किसी तरह न मानी तो उस जालिम ने झुंझला कर ऐसी तलवार उसे मारी कि वो बेदम होकर गिर पड़ी। अब कौन था जो जालिम को रोक सकता? वो दोनों को लिए हुए नहर पर पहुंचा। बच्चों ने चंद मन्नत समाज से कहा, शक हमें कत्ल न कर और हाकिम के सामने जिंदा ले चल। मगर वो मानने वाला था। बस आखिरी फिक्र और खत्म मजलिस। नामर्द ने हमला किया तलवार उठाकर, मुँह सुर्ख सर रख दिया चोटे ने वहीं जल्द बढ़ा कर। तब हाथ से चोटे ने बड़ा भाई हटा कर जा बैठते दो दम सर को झुका कर। तलवार चमकती थी तो हट जाता था भाई, अरे फिर दौड़ के भाई से लिपट जाता था भाई। नागाह चली जुल्म की तलवार बड़े पर, अरे बालाए जमी कट के सितारा सा गिरा सर। दरिया में सितम गार ने फेंका तने अतहर। चिल्ला के ये छोटे ने कहा, हाय बरादर, देखा जो बड़े भाई का सर दस्ते वदू में। अरे वो गिर के तड़पने लगा भाई के लहू में। आया जो शहीद तेग अलम करके दोबारा, अरे चिल्लाने लगा भाई को वो भाई का प्यारा। अरे मादर को पुकारा कभी भाई को पुकारा। जल्लाद ने तन पर से सर उसका भी उतारा। धब्बा बिना खून का लगा शमशीर वदू में। अरे भाई का लहू मिल गया भाई के लहू में। भाई का लहू मिल गया भाई के लहू में। हाजिर मजलिस की तरफ